I suggest you please wash your hands for 20 seconds. It's my request whenever and wherever you are. Please wash your hands for 20 seconds to remove coronavirus from our body. Before going to play my video, I pay my tribute to all the corona warriors. Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Are you all my personal dreams? So today we are here to discuss a new chapter, a new grammatical chapter, writing personal letters, which is very unique. And I will teach you today how to write a letter. But basically, there are many letters. But today we will discuss how to write a personal letter. There are business letters, there are official letters, there are formal letters, there are informal letters. But today I will basically tell you the rule of personal letters, how it is written, and it can be applied in other letters too. अन्य लेटर मध्य एभलिया स्टाइल रे आमे लिखि परिबा. Once we know the rules how to write, it will be easier to write a letter. आमे जानि परिबा सेतबेले लेटर किभली लेखा जायते if you know the skill of writing. किभली यार कौशल अछि ताको आमे जानिबा प्रथमे आजि. So most of our writing in English consists of letters, letters to friends and acquaintances, letter to government officials, letter to different departments we may be working in. आमे जो जगह काम करछु सेठे हो ऑफिशियल लेटर्स हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट ପାଇଁ लेटर भी लिखुछु आमे, लेटर टू पेरेंट्स एंड ऑल्सो
it is therefore necessary to learn how to write effective letter. It is very essential how we are going to write an effective letter that is counted and that can also enhance our knowledge how to write letter. Later we will discuss about other different letters, but today especially we will focus and also we will pay attention to informal, personal and friendly letters only. So I have given through the picture, or I have shown you different examples of writing letters, and special skills are also mentioned here. Through the pictures I can show you, but before that we will know what are the rules. So I am here with showing a picture of a letter, how it is written. You should see it properly. Actually it was written by Biswanath Mishra, and we can see all the headings: Mandar Vagichapura, Bhavani Patna on 14th August 2009, and the letter is started from there with the salutation. You can see, तुम देखिपार जे कि भाव लेटरटी लिखा जाए, डियर विशु को लिखा जाए लेटरटी. द लेटर इज स्टार्टेड फ्रॉम योर लेटर ब्रॉट मी द बेस्ट न्यूज ऑफ द ईयर एंड ऑल द थिंग्स आर मेंशनड हियर. ये जिन सब लिखा जाए भल भाव लेटरटी को देखी दियो, एंड आई एम गोइंग टू एलाबोरेट हाउ इट इज रिटन. मुझे एक्सप्लेन करुच्ची एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हाउ इट इज रिटन. यहाँ कि लिखा जाए मुझे एक्सप्लेन करुच्ची, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस हाउ मेनी पार्ट्स इट हैज बीन डिवाइडेड, केते पार्ट्स रे डिवाइड होती, कौन कौन से पार्ट गुड़ाक आम प्रति जिनस को भल भाव पढ़ा डिस्कसन करवा, एंड होप द नॉलेज विल हेल्प यू टू नो अबाउट द स्किल ऑफ राइटिंग लेटर्स. एटा तुमको हेल्प कर गोटे कौशल शिखबार लेटर केमती लिखा जाए. पर्सनल लेटर्स, जो पर्सनल लेटर हो कौ गुड़ा कह जाए फ्रेंडली लेटर्स, इनफॉर्मल एंड पर्सनल. सो द पिक्चर which we saw just we had seen a picture. I'm going to tell about that picture of letter. Say letter विषय में कहूँ. This is a personal letter from Ashok to Biswanath. Actually it is written by Ashok and it is written to Biswanath. Biswanath को लिखा जाए and के लिखी जी Ashok लिखी जी. This letter, as we can see, it has been divided into 6 parts. Just I told you. जस्ट मुझे विषय तुमको कहली जे एटा लिखा जाइए बा 6टी भाग विभक्त करा जाइए, एंड इंक्लूडिंग द एड्रेस ऑन द एनवलप एड्रेस भी लिखा जाइए. सो वी विल डिस्कस इट with section wise. With section wise we are going to discuss how it is written, कि भली लिखा जाइए. The first one, the address of the sender. You can see the address of the sender, जोटा कि आम लिखाई मंडर बगीचापरा भवानी पटना 14th August 2009 जहाँ कहले, दैट इज एड्रेस ऑफ द सेंडर. सो हाउ इट इज रिटन, एक्चुअली द एड्रेस ऑफ द सेंडर, दिस इज रिटन ऑन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. राइट हैंड कॉर्नर पेज उपरे लिखा जाए एड्रेस टी. आउ कौन कौन नियम रही द एड्रेस ऑफ द सेंडर रे, हाउस नंबर, द नेम ऑफ द स्ट्रीट, जहाँ किसी रही है गोटे एड्रेस से सब लिखा जाव. द नेम ऑफ द विलेज और टाउन एटसेट्रा शुड बी मेंशनड देयर, से लिखा जाव. बट वन थिंग वी शुड रिमेंबर, डू नॉट राइट योर नेम अबव द एड्रेस. एड्रेस उपर केवल निजर ना लिखा हेब ना. इट कम्स एट द एंड ऑफ द लेटर. एटा केते लिखा जाए निजर नाटी जी लिखुची लेटर एट द एंड, सभा शेष. इट इज रिटन हियर, यू कैन सी. It comes at the end of the letter. It comes at the end of the letter. Then usually we put commas after each line till the end of the address. प्रति address end रो line रो प्रति address रो end रे आमे comma दो. और जदि comma दे था where we put a full stop. Wherever, however, these are not very important. एगुड़ा को एते important हो न देले भी चलियो बोली करे एटा कहा जाई छी when we write a letter. So next one is, you can see the date is mentioned below the address. Address तले लिखा जाए the date. So you can see how it is written, 14th August 2009, no comma, no full stop. It is very clear. एटा बहुत स्पष्ट होगा दरकार ए जिनसटी, and different styles are there mentioned. You can see how a date can be written, कि भली गोटे डेट लिखा जाए पारे से विषय आमर धारणा रही. नेक्स्ट वी आर मूविंग. नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज द सल्यूटेशन. सल्यूटेशन कहले ओडिया रे कहले तार अर्थ होची संबोधन. प्रथम जिनस कहले द एड्रेस ऑफ द सेंडर केमती लिखा जाए. बी बा सेकेंड पॉइंट होची हमर द डेट केमती लिखा जाए, कोठी लिखा जाए. नेक्स्ट होची सी,
बा जोटा विच इज नोन एज द सल्यूटेशन इन इंग्लिश जहाँ ओडिया कहले संबोधन. सो व्हेन वी राइट अ लेटर the salutation is very much important and it is very essential. बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस होची salutation बा संबोधन. When we write a friend, when we write a letter to the friend, we address him by the name we use. जहाँ मनकर suppose we write a letter to our friend जगन्नाथ, we write dear जगन. Similarly एभली भाव बहुत जिनस लेखु आमे जमती विश्वनाथ कहले विशु, डियर विशु, नॉट डियर फ्रेंड, नॉट डियर विशु, नॉट डियर फ्रेंड विशु, नॉट डियर विश्वनाथ एमती लिखा जाए ना. एक्चुअली विथ हुम और विथ which name we are closed we clearly mention at the top when we start writing a letter. आम जो लेटर गोटे स्टार्ट करूँ तार ना अनुसार तार डाक ना अनुसार आम लिखु जोटा निक नेम बोलिक कह जाए. सपोज द एग्जांपल्स आर मेंशनड हियर. माय डियर जमती आम कहे सपोज जदि आम लिखुचे गोटे एड्रेस जड़े सांग को लिखुचे ताहले डियर फ्रेंड लिखिपर. डियर फ्रेंड विशु बोलिक लिखा जाए पारना. डियर फ्रेंड कहले डियर फ्रेंड ओनली इट शुड बी मेंशन. आ विशु बोली बोले डियर विशु भी लिखा जाए पार बा डियर जहाँ सांगर ना थी ता लिखा जाए पार. एंड सपोज वी आर राइटिंग अ लेटर टू आवर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, अ वेरी मच इंटीमेट फ्रेंड. व्हाट वी कैन राइट माय डियर फादर, मम्मी, माय डियर मम्मी और माय डियर सांग जदि हो कहले माय डियर गीता जहाँ किसी लिखा जाए पार. बट वी शुड रिमेंबर we cannot write the name of our parents in the salutation. Salutation रे हम parent मानकर ना लिखि परिबा नहीं. Only we can mention my dear father, my dear mother, my dear grandmother, my dear grandfather, my dear uncle, my dear aunt, that much. And put a comma. It is important. We should put a comma after the salutation. Salutation पर तले comma देखि लिखि परिबा. We can see the picture here. तुम picture एठी देखि परिबो केमति लिखा जाय छी. So when we write to a friend, address him by the name we use. आम केमती यूज करूँ ना जो लिखुचु डियर विशु, डियर जग्गू बा डियर जग्गा एभली लिखु. किंतु वी कैनॉट राइट माय डियर फ्रेंड जगन्नाथ, माय डियर फ्रेंड अमक. नो, दैट विल बी वेरी लेंथी. एटा बहुत लंबा हो सेमती लिखा जाए पारना. जस्ट निक नेम आम लिखुवा दरकार. एक कथा कह जाए. एंड वी आर मूविंग द नेक्स्ट known as the body of the letter. जोटा ओडिया कहले विषय वस्तु बोलिक आम कहूँ द कंटेंट ऑफ द लेटर. कंटेंट कौन रही. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ए लेटर. गोटे लेटर मुख्य अंग होची जे इट शुड बी वेरी मच इफेक्टिव. एटा बहुत उपादेय रहिबा दरकार. आकु गुरुत्वता रहिबा दरकार. आर गुरुत्व रहिबा दरकार. ए गुड पर्सनल लेटर मस्ट बी सिंपल, प्लेजेंट, इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल. इट शुड बी मोर फ्री. इट शुड और इट मस्ट बी सिंपल. बहुत साधारण होगा दरकार. प्लेजेंट बा खुशीदायक बा आनंद प्रदान करुवा दरकार. इनफॉर्मल वे बा कन्वर्सेशनल होता दरकार. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. दैट काइंड ऑफ समथिंग जमती आम कहीपर जमी पाखे अच्छु से भाया फिल करे पारे ए लेटर. दैट इज द फंक्शन ऑफ ए लेटर. तार काम हो लेटर काम हो सैया. A lot of news and small details which appeal to the address must be included. Every sort of information should be mentioned in the letter. Actually letter रे जति भी गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन रही है सब मेंशन हवा दरकार. एंड द टोन शुड बी सिमिलर टू ए फ्रेंडली चैट. गोटे फ्रेंडली चैट जमती रही है दैट शुड बी डन लाइक दिस. जदि गोटे सांग पाक चिठी लिखा जाए गोटे सांग भाया कन्वर्सेशन रहा दरकार. एंड इफ वी आर राइटिंग अ लेटर टू द पेरेंट्स, जदि आम पेरेंट्स को लिखुचु, गार्डियन को लिखुचु, से भाई लैंग्वेज लिखा दरकार. एंड इफ इट इज रिटर्न फॉर ऑफिस पर्पज, जदि ऑफिस पर्पज हिसाब से लिखा जाए द लैंग्वेज शुड बी मेंशन देयर. ये जिन सब रहा दरकार. एंड वी शुड रिमेंबर ऑल द इनफॉरमेशन शुड बी मेंशन. सब जहाँ किसी इनफॉरमेशन रही सब जाक मेंशन रहा दरकार. बट वन थिंग वी शुड रिमेंबर द रूल 1.1 paragraph. Whenever we write a letter, suppose a question comes in an exam, यदि गोटे एग्जाम आसे, for each paragraph we get 1 mark or we get 1 point for 1 paragraph. The number of paragraph may be very depending on the ideas we want to express, and the paragraphs it depends upon us. आम उपरे निर्भर करे how much lengthy we can make it. एभली केते लंबा आमे करि परिबा सेटा हमरो
भितर रहा जोटा आम कहूँ केते आम आपको केते डेस्क्रिप्टिव वे लिखिपर जहाँ जहाँ दरकार रही है गोटे लेटर गोटे चिठीर आवश्यकता जहाँ जहाँ रही है एज पर द डिमांड ऑफ द लेटर वी हैव टू राइट आमको लिखा पड़े एंड वी हैव टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज देयर इन द लेटर. The given example has 3 paragraphs. Sir, 3 paragraph अच्छी. We can see over here how it is written. प्रथम the letter is started from your letter brought me, which is ended here. You good luck. Wish you good luck. तापर the next paragraph you can see over here. Babu is keen on starting, and it is ended here to send him. Then another paragraph is started after this. Give me regards to your parents. They must be really proud of you now. एभलिया गोटे आउ गोटे paragraph एटी आरंभ होइछि. It has been divided into 6 parts, but the paragraphs are divided into 3 parts. 3टा paragraph रे विभक्त करा जाइछि. That means it is completely dependent upon demand of the letter बा demand of the writer बा sender रो demand अनुसार रहुछि एटा. Then we are moving to the next part, which is known as the subscription. Subscription कहले another संबोधन जोटा आम संबोधन करवा शेष को जोटा को सब्सक्रिप्शन कहुए. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लोजिंग अ पर्सनल लेटर इज योर सिंसियरली योर सिंसियर फ्रेंड. जदि आम फ्रेंड पाई लिखुचु एक्चुअली योर सिंसियरली कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर सबू जगार. जदि आम गोटे ऑफिस पर्पस रे लेटर लिखुचु तापाई भी तले आम लिखिपर योर सिंसियरली. पेरेंट्स पाक लिखुचे लेटर बोली कहले योर सिंसियरली लिखिपर. सांग पाक लिखुले भी योर सिंसियरली लिखिपर. जहाँ को भी लिखिले आम योर सिंसियरली कैन बी अप्लाइड. But how it can be written and what different words we can write there. आउ कौन कौन लिखिपर योर सिंसियरली, योर सिंसियर फ्रेंड, योर affectionately, योर सिंसियरली, योर्स एवर लविंग सन, फ्रेंड, ब्रदर, लव जहाँ किसी. सो वी शुड रिमेंबर देर इज नो एपोस्ट्रोफ इन योर्स. योर्स पाखर केबे एपोस्ट्रोफ रहिबो ना. YOUR ऊपर केबे कमा रहिबो ना जोटा को एपोस्ट्रोफ एस बोल कर कहूँ. We should remember it. Check the spelling of sincerely, and before going to conclude the letter we should remember whether all the sentences are written correctly or not. And one thing we should check it clearly, that sincerely the meaning of the spelling of sincerely spelling ta ठीक अछि कि नै हमको चेक करिया को पड़िबो. And it is clearly written here. The next part is here the signature. The signature रहिछि. A personal letter does not need a full signature. फुल सिग्नेचर दरकार न थाए. ओनली द निकनेम बाय विच यू आर नोन. ओनली योर निकनेम इज सफिशिएंट इन द लेटर. बट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ऑन द एनवलप दैट इज इंपोर्टेंट. एनवलप रे आमे संपूर्ण नाम लिखा पड़ो. बट इट इज टोल्ड अबाउट द सिग्नेचर इट इज नॉट इंपोर्टेंट. गोटे जिनस कौन दरकार केवल निकनेम बाय विच वी आर नोन. आमको लोक मैंने जहाँ जो नाम जानी से अनुसार आम योर सिंसियरली नाटा लिखिदेवा निकनेम तले. दैट मच ओनली एंड दैट मच विल बी सफिशिएंट. नॉट अशोक कुमार दास बट अशोक विल बी सफिशिएंट. अशोक कुमार दास नो किंतु अशोक कहले सफिशिएंट. नॉट विजय लक्ष्मी ओनली VG विल बी सफिशिएंट. निकनेम सेटा केवल लेटर भितर. बट द एड्रेस ऑन द एनवलप विच इज ऑल्सो इंपोर्टेंट. कोठी रहिबो केमती रहिबो कौन सेटा देख लिखा है चिठी. राइट द नेम एंड एड्रेस इन फुल सो दैट द पोस्टमैन डजंट हैव एनी कन्फ्यूजन. हाँ, व्हाट वी शुड राइट ऑन द एनवलप. द एड्रेस, नेम ऑफ द सेंडर, नेम ऑफ द रिसीवर. जे रिसीव कर तार एड्रेस कौन भल भाव रखा दरकार. एंड हु इज राइटिंग द सेंडर जे हूँ प्रेरक चिठी प्रेरक से भी तार एड्रेस को भल भाव रखा दरकार. ये लिखाई लिव स्पेस फॉर द पोस्टेज स्टाम्प्स आमको जगह देवा पड़ो. द टाइटल लिखा पड़ो मिस्टर मिस डॉक्टर जहाँ भी किसी. And if you are writing a personal letter on a postcard, all these parts may not be included. Only the date, message and the initial of the sender will be enough. And आम जब postcard रे गोटे चिठी लिखुचु ताले there is no need to write or there is no need of an envelope. Envelope रा आवश्यकता नहीं जब हम postcard रे लिखुचु. कहीं the format is already given there and we can mention there. आम से बारे भलो भाव लिखि परिबा एड्रेस एक कथा कहुई. सो दैट मच फॉर द राइटिंग लेटर्स. एतिकी जिनस आमको जाना निहाती दरकार. एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी बिलो द वीडियो एंड कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई कैन रिप्लाई देयर.